Good morning, students. As I said, today we are going to discuss upon the topic users of accounting. So, there are two users of accounting. First one is internal users, another one is external users. Internal users means the users which are from the organization, which take part in the core activities of the organization. They are the internal users of the accounting. Core activities means the activities for which the organization is being meant. Internal users, first of all, is owners. Of course, the owners are interested in accounting information, and it's natural. Why? Because they have invested some of their capital. अगर किसी ने पैसा लगाया है तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरेस्टेड रहेगा ही कि भाई इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, मुझे पता तो चले, मैंने इतना पैसा लगाया, कितना क्या मिल रहा है रिटर्न मुझे. तो यूजर्स, दे आर द नेचुरल वी कैन से नेचुरल इंटरेस्टेड पर्सन इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अनदर वन इज मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट को क्या है इससे फायदा मिल रहा है, वो क्यों यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? वो इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो अपने फ्यूचर डिसीजंस को बना सके. फ्यूचर डिसीजंस ले, कितनी सप्लाई करनी है, कितनी प्राइस रखनी है, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दीज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. And last one is employees and workers. Employees and workers are interested so that they can get to know that in this year, at the end of this year, they are going to get the bonus or not. If the company is capable of paying their responsibilities towards the workers, like provident fund, like gratuity, क्या वो इतना कर पाएगी और कर रही है कि नहीं कर रही है, कि इतना अवेलेबल प्रॉफिट है? So this is the reason why employees and workers are interested in accounting information. Now let's come to the topic external users. External users में कौन कौन से हैं? So first one is banking and financial institutions. Banks and financial institutions are the loan providers to the organization. And before paying the loan, before giving the loan, what they will check the credibility of the organization, whether the organization is able to repay its loan on time or not. And how this credibility will be reflected? It will be reflected by the accounting information. And this is the reasons why accounting is known as the language of the business. Another one is investors or potential investors. इन्वेस्टर्स को लालच देना पड़ता है कि हमारे कंपनीज में पैसा लगाएं, एंड व्हाई टू गिव देम दिस बेनिफिट्स सो दैट दे कुड ब्रिंग सम मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी हेल्पफुल इन द ग्रोथ. तो इन्वेस्टर्स वहीं पैसा लगाएंगे जहां पर उनको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है. तो कहां से पता चलेगा कि अच्छा बेनिफिट मिल रहा है? पता चलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मींस, ओके, क्रेडिटर्स का मतलब भी होता है वो उधार देते हैं, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उधार देते हैं. फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है कि क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस व्हिच गिव गुड्स or services on credit. Clear? And banking institutions, they give money for the expansion for longer period of time, और ये छोटे टाइम के लिए, for a shorter period of time. So if the company's paying liability paying capacity is better, the creditors will be willing to give the loans to the or give the services on credit to the organization. Next is government and authorities. गवर्नमेंट किस लिए होगा? गवर्नमेंट की तो एक ही मकसद है
एक दो मकसद और है, सॉरी एक नहीं, दो तीन मकसद है। पहली चीज है कि वेदर द कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉट। दूसरा है टैक्सेस, क्या गवर्नमेंट कंपनी अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और वो एप्रोप्रिएट टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स टू इट इज हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क ऑफ द रिसर्चर्स। अब उसमें स्टैटिस्टिक्स के डेटा भी आ सकते हैं, और वो किससे पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स को क्या इससे मतलब है, ओके सपोज आप पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का करना मतलब केवल खा लेना नहीं होता है ना, कंज्यूम करने का मतलब होता है जिसको यूज करें और वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूम करना। तो पेट्रोल को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट उसके ज्यादा प्राइसेस ले रही है, देन इट इज एप्लीकेबल कि वो सही भी है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा प्राइसेस फिर भी प्राइसेस को अपने कम नहीं कर रही है, उतने ही प्राइसेस पे पेट्रोल दे रही है, तो इससे हम लोग ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन प्राइस कम है तो फिर हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं, सो दैट वी कुड डिसाइड द प्राइस। दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर्स। पब्लिक, okay, it is well known that organizations give the opportunities to the public. What opportunities? Job opportunities. So if the business is expanded, of course it is natural that job opportunities will be created on a large scale. So these are the users of accounting. Okay, हम लोग एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, और वो है हमारा टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। Reliability means the accounting information must be free from personal bias, any biasness or any errors, so that the users can be rely upon them. They can depend upon them. अगर कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल मतलब भरोसेमंद नहीं होगी तो उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। आगे फोरकास्टिंग, अगर मैनेजमेंट इसकी फोरकास्टिंग करेगा तो फोरकास्टिंग भी गलत हो सकती है। रिलायबिलिटी में दो तीन चीजें और आती हैं, जिसमें से पहला आता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्रेजेंटेड एज इट इज। Clear? Second one is relevance. It should give the relevant information. Means information related to accounting only. Third one is understandability. Understandability means the information must be properly can be clearly and easily understandable by the accounting users. It should be not in the complex form. Next, materiality.
मटीरियलिटी मीन्स द मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड. मटीरियल मीन्स जिसकी इंपॉर्टेंस हो, इंपॉर्टेंस जिसका कुछ सिग्निफिकेंट हो, और ऐसी चीजें जिसको अगर छोड़ दें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ जाए, बड़ा इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिवील करना है. सो दिस इज मटीरियलिटी. द इंफॉर्मेशन मस्ट बी मटीरियल इन नेचर. और जनरली ये वाली मटीरियलिटी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा था तो मैंने बता दिया आप लोगों को. एंड द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल. कंपेरेबल, फॉर मेकिंग इट कंपेरेबल what should we do? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कंपेरेबल बनाने के लिए, कि जो अकाउंटिंग फॉर्मूले और प्रोसीजर्स हमने पहले इस्तेमाल किए थे वही इस साल भी इस्तेमाल करें. ठीक है, कोई भी चीजों में चेंजेस ना करें, तो ही इस साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को या प्रॉफिट और लॉस को पिछले साल से कंपेयर किया जा सकता है. अगर अनइवन है तो कंपेयर नहीं हो सकता. क्लियर? अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने ग्रीवेंसेस को लिख सकते हैं. आज के लिए हम लोग यहीं पर ही रुकेंगे. थैंक यू.